चलो, sixth one. In the journal of Manish we are doing. Okay, अच्छा, about the test, your test would be either this Friday or Monday. Friday या Monday को होगा. I'll put it in the group by Sunday tomorrow या फिर Monday तक आ जाएगा. Friday या फिर उसके बाद वाला Monday, ये वाला Monday, टेंशन में मत आ. Friday को होगा या फिर Monday को होगा, बट ऑफलाइन होगा at SVDD स्कूल. तो आपको वहां पे आके लिखना. SVDD पता है ना, स्कूल सब राष्ट्रीय शाला. आप तो from there on. तो वहां पर होगा. I'll announce all the details of the pattern और सब दे दूंगा मैं. Start preparing properly. Sixth question, number 1. 1st January 2014. Manish commenced business with cash rupees 4 lakhs. It is 4 lakhs. Ninal, can you tell me the two accounts? It will be cash account and capital account. Cash and capital. We try to think all the rules in your mind and tell me the answer. क्या debit करूं, क्या credit करूं, क्या लगता है? We will debit cash. Yes. Because we are receiving the cash. Yes. Debit. What comes? Credit the giver. Credit the giver. Cash account debit to capital account. बराबर है? Cash account debit to capital account. How much? Debit का 4 lakhs in debit का line. Credit का 4 lakhs in credit का line. और reason लिखने का being cash introduced as capital. Yeah, simply cash introduced as capital. Cash introduced as capital. Yeah, cash invested in the business as capital. Okay. Very good. First one, all of you clear? First one, cash and capital, cash account debit to capital account credit. 3rd of January, the next transaction is happening on 3rd of January. Sir, फिर 2nd January को क्या? 2nd January को कुछ नहीं. जरूरी थोड़ी हर दिन ट्रांजैक्शन हो. एक दिन नहीं हुआ तो कुछ नहीं. Skip it. Hitarth, tell me. Yes, sir. Purchase goods from Amitabh. पहले तो मुझे बताओ, are you buying it for cash or on credit? So credit. How did you arrive at credit part? सर क्योंकि वो अभी पे नहीं कर रहे हैं. पर कैसे पता चला अभी पे नहीं दिया तो है? Remember the two conditions. 50,000. What are the two conditions? नाम है लेकिन कैश. हाँ, नाम है लेकिन for cash for check नहीं दिया. That's why it is credit. Is this clear? कैश जब भी कुछ परचेज सेल करते हो, याद है 2 कंडीशंस बताई थी. पार्टी का नाम होना चाहिए, कैश के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए. फॉर कैश फॉर. यस. So you are buying on credit. So what are the 2 accounts, Siddharth? Sir, so one is goods account and one is Amitabh account. Sir, purchase account ना? Purchase करे છે goods તો કયો account use કરવાનો? Sir, purchase account Amitabh account. Goods account આવશે જ નહીં. 100 માંથી એક વખત ક્યારેક આવશે. ઓકે, નહીં તો goods account use જ નથી કરવાનો. મોસ્ટલી purchase જ. Purchase करे तो purchase, sale करे तो sale. Purchase and second account? Mr. Amitabh account. Purchase and Amitabh. હવે think, બધું દિમાગમાં કર અને મને બતાવ. Which should be debited and which should be credited? Sir, Amitabh account will be credited and purchase account will be debited. Why purchase debit? Tell me the reason. Sir, because goods are coming in and cash is going in. Goods are coming in, એ reason નથી. Purchase expense છે. Debit all expensive. And less. Otherwise modern કરે છે તો expense વધે છે તો debit. રૂલ થી જા ભાઈ, રૂલ થી જા. દિમાગમાં રૂલ ફ્રેમ કરવાનું. Purchase expense, all of you getting that? Debit all expense. Yeah, expense increases or debit. And yeah. Amitabh, why Amitabh credit? Why Amitabh credit? Amitabh is the giver. ऐसा कर सकते हो या मॉडर्न में कौन है अमिताभ? क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होता है? Liability. लायबिलिटी होता है. लायबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ? Increases, so credit. Liability increases, so credit. So being goods purchased from Amitabh on credit.
Being goods purchased from Amitabh on credit. खाली from Amitabh लिखा तो भी on credit assumed है, नाम दे दिया है तो assumed है. Is this clear? परचेज एंड अमिताभ रूल्स के साथ. हाँ, खाली डेबिट क्रेडिट याद रखोगे ना तो फिर रूल्स ही भूल जाओ. रूल्स ट्रेडिशनल या मॉडर्न दोनों में से एक अप्लाई करके फिट होना चाहिए. ओके. खुशी दोषी सोल्ड गुड्स टू सलमान खान. Yes, sir. One will be a sales account and then it will be to Salman Khan, like that account. टू सलमान खान नहीं, सलमान खान ही. Yes. सोल्ड गुड्स टू सलमान खान, वो सलमान खान अकाउंट एंड सेल्स. बराबर है. Yes. मुझे बताओ क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, सोचो जरा. We are selling goods, so our income will increase. यस. And then we are selling it, so Salman Khan will be a debtor. So यस. Salman Khan will be up, and then sales account will be down. डाउन. अच्छा, मतलब हाँ, डेबिटेड एंड क्रेडिट. Yeah, debit and credit. ओके. तो सलमान खान अकाउंट डेबिट. क्यों डेबिट? कि सलमान खान इज डेटर, डेटर बढ़ रहा है. अब क्रेडिट. अच्छा, दिस इज आल्सो ऑन क्रेडिट. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? दिस इज आल्सो ऑन क्रेडिट बेसिस. सबको समझ आया? व्हाई ऑन क्रेडिट? पार्टी का नाम दिया And था. cash is not mentioned. And cash is check. not mentioned. Cash check not mentioned. अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द अमाउंट. हाँ, अमाउंट की वजह से वो कैश नहीं हो जाता. हेलो, फॉर कैश फॉर चेक देना जरूरी है. फॉर कैश फॉर चेक देना जरूरी है तो ही वो कैश बेसिस पे हो. अमाउंट तो हर एक में होगा. 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 फर्क नहीं पड़ता. दिस वाज ऑन क्रेडिट बेसिस. हमने गुड्स बेचा है, पैसा आया नहीं है, तो डेटर बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. सलमान खान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सलमान खान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट इज 80,000. Salman Khan debit to sales account 80,000, being goods sold to Salman Khan on credit. Being goods sold to Salman Khan on credit. Is this clear? ट्रेडिशनल में भी अप्लाई कर सकते हो. डेबिट द रिसीवर है, सलमान इज द रिसीवर, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गिफ्ट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गिफ्ट. इज दिस क्लियर? All of you, any doubt? વધો આગળ વધો. Purchased one motor car for cash. Priyal Patel. Purchased one motor car for cash. What are the two accounts? Motor car account and cash account. Okay. Now दिमाग में चलो बताओ मुझे क्या होना चाहिए, डेबिट क्या होना चाहिए. Motor car account will be debited and cash account will be credited. Very good. Why motor car debit? Motor car is a asset, so since it increases, it is debited, whereas cash asset is decreasing. Very good. एकदम परफेक्ट. इसका आंसर आना चाहिए टपाटप. मोटर कार एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट. एब्सोल्युटली राइट. So motor car account debit to cash account. 1,50,000 is the amount. 1,50,000 being motor car purchase for cash. Being motor car purchase for cash. समझाणु बधाने. ट्रेडिशनल भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों रियल है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मोटर कार आया, कैश गया, बोथ आर रियल. ऑल्सो अप्लाई ट्रेडिशनल, ऑल्सो अप्लाई मॉडर्न. जो करना है दिमाग में अप्लाई करना है रूल, और अराइव एट द आंसर. आंसर पे अभी आपको है ना, घाई मत करो. परफेक्ट आंसर लाना जरूरी है. रूल फिट करना जरूरी है. समझा? स्पीड अपने आप बढ़ेगा. डोंट गो आफ्टर स्पीड. स्पीड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. आंसर परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक डेबिट का क्रेडिट हो गया तो पट बेमार्क उड़ी गया. और बोर्ड्स में आपको मालूम है 12th स्टैंडर्ड में 2 मार्क का वैल्यू. एवरी मार्क देयर आर 1,000 स्टूडेंट्स इन बोर्ड्स. 12th स्टैंडर्ड 1 मार्क डाउन मतलब 1,000 स्टूडेंट्स डाउन. 1,000 स्टूडेंट डाउन मतलब 1 गुड कॉलेज गॉन फॉर डिग्री. एक कॉलेज का 1000 सीट का कैपेसिटी रहता है. एनएम में 1000 सीट, पीटीबाई में 1000 सीट, उदार में 1000 सीट. एक मार्क डाउन मतलब 1 गुड कॉलेज गॉन. बीएमएस करना है, बीएफएम करना है. सो
don't take that risk. Be particular from now itself. Okay. डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ. This is a fact. Okay. You don't be careless. In the back of the mind, वो carelessness निकाल. Then sold machinery for cash. Will answer this Prisha. Sold machinery for cash. Yes, sir. So What are the two accounts? पहले बोल दो मुझे. What are the two accounts? cash and machinery account. Very good. Now what should be debited and what should be credited? Cash should be debited since it is real, Yes. and Real, machinery real है तो debit. debit what comes in, हाँ. and machinery is also real, Yes. so credit what goes out. Yes. Perfect. Now cash debit what comes in, machinery credit what goes out. Amount is 90,000. 90,000 rupees being machinery sold for cash. Being machinery sold for cash. Okay. 11th one. Very good. Perfect, Prisha. Kasak. Purchased a building. Purchased a building. What are the So two building accounts? a purchase account and cash. Building account and cash. Purchase and cash की building and cash. Building and cash. केम purchase and cash कीधुं ना हमना तो. Because it is not goods. हाँ. Purchase can be used only for goods. बराबर है? So now tell me what should be debited and what should be credited. So building account will be debited and cash Yes. account will be credited. But why? Because building is a real account and cash is no way. Building is real and no, it is an expense, so nominal. Building expense બહુ પૈસા છે તારા પાસે. દર વર્ષે building ખરીદીશ. No. So it is real and cash is also real. So a debit what comes in and credit what goes out. હા. Building એક વખત લીધી તો પડી છે ને. એટલીસ્ટ 15-20 વર્ષ. કસક પાસે બહુ પૈસા છે. રોજ એક બિલ્ડિંગ લે છે કસક. મહિનામાં 2 બિલ્ડિંગ, 3 બિલ્ડિંગ. રોજ કોઈ બિલ્ડિંગ લે? Is it an everyday expense? No. Once you buy it and keep, it will last for long, right? It is a fixed asset. It will give you benefit for a long period of time. Long-term expense. So that's why it is asset. 1 year से ज़्यादा. बराबर है? जो हर साल चला जाता है, 1 साल के बाद खत्म हो जाता है, जिसका benefit, that is an expense. So building account debit to cash account, debit what comes in, credit what goes out. Modern में क्या होगा? Building बढ़ा तो debit, cash घटा तो credit. मॉडर्न में बिल्डिंग बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैश घटा तो क्रेडिट. मॉडर्न भी साथ में रखना, बैक ऑफ द माइंड. मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों रूल अप्लाई करना. अमाउंट इज 20,000 20. अभी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं बेचारे, इतना घुस जाते हैं रूल के अंदर कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख देंगे, अमाउंट ही नहीं लिखेंगे. अमाउंट खाली छोड़ दिया, आधा मार्क नहीं मिलता है. ये डांस नहीं है कि स्टेप का मार्क मिलेगा. पूरा एंट्री परफेक्ट होना चाहिए. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000 और नरेशन भी होना चाहिए, अब जाके पूरा मार्क मिलता है. बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर कैश. बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर कैश. ओके, वेरी गुड. भौमिक सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू शाहरुख खान. तो क्या बिजनेस कर रहे हैं हम लोग? कौन है हमारे डेटर और क्रेडिटर? बोलो भौमिक. सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू शाहरुख खान. What are the two accounts? Just tell me that. हेलो भौमिक, आवाज न जाओ तो. भौमिक पास टू रहना. What are the two accounts, Raina? Yes, sir. Shah Rukh Khan account and furniture account. Very good. Shah Rukh Khan and furniture. And tell me the account which should be debited. Shah Rukh Khan account should be debited. Okay. And Furniture account should be credited. Now tell me the reason.
Yeah, because we are selling the furniture on credit to Shah Rukh Khan. So Shah Rukh Khan becomes our debtor. So he's an asset which increases, so debit. And Absolutely right. furniture is an asset which decreases, so credit. Absolutely point. Debtor increases, so debit. Asset, एक asset बढ़ा, दूसरा asset कम हुआ. All of you got that? Debtor increases, so debit. Furniture decreases, so credit. Why can't we use sales over here? Because furniture is not the goods that we No. trade in every day. Exactly. Okay. We are not dealing in furniture, not goods. So furniture, asset. So furniture and Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is the debtor now. We have to receive the money from him. Being furniture sold on credit to Shah. Being furniture sold on credit to Shah. Absolutely right. Perfect एकदम. संजय जी, हाँ बोलो. So is it okay if you don't mention on credit? हाँ, शाहरुख खान तक भी मेंशन किया नरेशन में. नोट. नरेशन एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो गया. It should just convey the meaning of transaction. Okay? Do not worry too much about narration. ज़्यादा लोड मत लेना. एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, अमाउंट परफेक्ट होना है. नरेशन दिखना चाहिए. It should be there. Okay? एकदम डेप्थ में कोई नरेशन पढ़ने वाला नहीं. ना. Sir, now my voice is coming. एक मिनट. Sorry. क्या? Sir, my now voice is coming. हाँ, voice is coming. Yes, bomb. Yes. You answer now. Paid freight. Next one you answer. Paid freight. Yes, sir. Freight account and cash account. एकदम करेक्ट है. और मुझे बताओ क्या डेबिट करूं और क्या क्रेडिट. Freight account will be debit. Yes. And because Because પાછો બંધ થઈ ગયો. Not audible. किसी और को आ रहा है क्या इसका आवाज? So can I continue? मेरे को ही नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है ना. इदान. Yes, sir. So, yeah, so freight is an expense. Yes. So expense increases, so it is debited. Yes. And cash is an asset, so it decreases, so credit. Yes. Absolutely right. Freight is expense, increases or debit. Cash is asset, decreases so credit. एकदम correct है. और क्या आएगा आपका अमाउंट 11,000. What do you mean by freight? ये मैंने डिस्कस भी किया था. What do you mean by freight charges? Anyone? So is the lifting While shipping charges? goods. Sir, we are while shipping goods. हाँ, for buying transport expense while buying or while selling. When you do it via train, ships, that is called as freight. Okay. So freight inward and freight outward. दो तरह के freight होते हैं. खरीदने पे हुआ तो freight inward, बेचने पे हुआ तो freight outward. These are shipping the goods का expense. बराबर बोला. Freight and cash. Have you got this? Traditional में भी कर सकते हो. Debit all expense and losses and credit what goes out. So freight is expense and cash goes out. Being freight paid. Being freight paid. Very good. Perfect. Out on freight. Freight is clear, all of you. Then next one. Tell me received commission. कौन बोलेगा मेरे को? Rivan. Received commission 5,000. Oh, sir. Oh, commission account and cash. Very good. Commission and cash. Now आराम से सोच के बताना what should be debited, what should be credited. Cash will be debited. Mm-hmm. And commission will be credited. Okay. Why? Because cash is an both are assets. Both are assets. No, sorry, wait. Sir, commission is income. And cash is asset. So asset increases, so debit, and income also increases, so credit. Being commission received. All of you got this? Cash increases, so debit, and commission increases, so credit. Finally, cash, debit, commission. Or you can apply traditional also. Cash, debit, what comes in? Commission, credit, all incomes and gains. Cash, debit, and commission, credit. Okay. That was on 22nd, 23rd. The third one.
Paid for office cleaning charges. Heath Shah. Paid for office cleaning charges. Sir, you didn't write the amount. अरे हाँ देखो मैं ही भूल गया. I was checking whether you are paying attention. Good. You are paying attention. See, like this, I also forgot. Students forget this. Be alert. Paid for office cleaning charges. Heath Shah. Yes, so office cleaning charges account debited. आपको याद है मैंने एक अकाउंट बताया था इसके लिए ऑफिस क्लीनिंग Miscellaneous expense. मिसलेनियस 7 नाम दिए थे. 7 में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो. 7 के साथ याद रखने की जरूरत नहीं. तो कौन से आपको मैं बता देता हूँ. जनरल एक्सपेंस Petty था, expense. पेटी एक्सपेंस था, ऑफिस एक्सपेंस था, सन्ड्री एक्सपेंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, मिसलेनियस था. ओके, तो ये सब छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं. जैसे कोई भी एक हेड आप यूज कर सकते. मेजॉरिटी कौन से यूज होते हैं? आइदर सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस. ये ज्यादातर बिजनेस यूज करते हैं. ओके, सन्ड्री या फिर मिसलेनियस. अब दोनों में से एक यूज कर सकते. तो ऑफिस, हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड कैश अकाउंट. कैश. क्या डेबिट करूं, क्या क्रेडिट करूं? Miscellaneous account debited and cash account credited because miscellaneous account is expense. So expense increases to debit and cash decreases to credit. Yes. Okay. Miscellaneous expense account debit, या you can write general या फिर sundry expense या फिर miscellaneous. Okay. Sundry expense या फिर miscellaneous expense debit to cash account credit. This would be how much? 500 rupees. छोटा छोटा जो एक्सपेंस, अमाउंट देख के मैंने ये नहीं बोला छोटा है. अमाउंट के पीछे मत पड़. डोंट गो आफ्टर अमाउंट. वो क्लीनिंग, स्वीपिंग, चैरिटी, डोनेशन, आपका कप, सॉसर, एलईडी बल्ब, ट्यूब, फिर आपका ये जो होता है सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन का सब्सक्रिप्शन होता है, ये सब वर्गनी चैरिटी, ये सब आपका सन्ड्री मिसलेनियस में. बोल. यस कार्तिक. Sir, can we simply write office account like? No. ऑफिस अकाउंट मतलब प्रॉपर्टी अकाउंट हो गया, एसेट हो गया. ऑफिस एक्सपेंस लिखो. ऑफिस एक्सपेंस चलेगा, वो साथ में एक ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ओके, पेटी एक्सपेंस. हमारा ये सब आप लिख सकते हैं. जनरल, ऑफिस, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस. तो बीइंग, यहाँ पे आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो ऑफिस क्लीनिंग चार्जेस पे. बीइंग ऑफिस क्लीनिंग चार्जेस, बीइंग ऑफिस क्लीनिंग चार्जेस. All of you clear? Expense है तो debit and cash goes out so credit. Then next one is 27th को हो रहा है cash sales. Cash sales. Who was next here? Harsh Mange, can you tell me cash sales? Cash account and sales account. Cash account and sales account. Very good. Cash and sales. What should you debit and what should you credit now? Cash account should be debited, sales account should be credited. Why? Because cash is an asset, it increases, so credit, and sales increases, so debit. Sales is what? Increases barabar. What is sales? Sorry, sir. Increases bola barabar hai sales, but what is sales? You mean which account? Income. Income. Sales is business ki income. बराबर है? So sales is income. Income increases, so credit. And cash also increases, so debit. So goods sold for cash. Being goods sold for cash. Being goods sold for cash. So the next one is 129. Cash purchases Hansika. Yes, sir.
Purchase account to cash account. Purchase is expense, so expense Yes. increases debit. Cash asset Yes. decreases. Yes. Perfect. Purchase expense increases, so debit. Cash asset decreases, so credit. Finally, purchase account is debited and cash account is credited. Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Absolutely perfect. और मुझे बताओ ट्रेडिशनल में क्या होता है परचेज और कैश का रीजन? ट्रेडिशनल में क्या रीजन लिखते हो आप परचेज और कैश का? Me. Anyone? Purchase account nominal. Nominal. So expense, debit all expenses and losses, and Yes. cash account is real. Yeah. Credit what Credit goes. what goes. Credit what. Perfect. All of you clear with that? Next one. Harshil Banushali. Received on account from Salman Khan. Yes, sir. Sir, cash account and Salman Khan account. Absolutely right. Cash account and Salman Khan account. What should be debited and what should be credited? Cash account should be debited. Salman Khan account should be credited. एकदम perfect. अब मुझे reasons बताइए. Cash account, as Salman Khan is a debtor, so it is an asset. Yes. An asset decreases, so credit, and cash increases, so debit. Very good. तो कौन सा एसेट बढ़ा? कैश बढ़ा. और सलमान खान कम हो गया. क्यों सलमान खान कम हो गया? डेटर था ना, एसेट है. हाँ, तो कम कैसे हो गया? बिकॉज ही पैसे भर रहा है. पैसे भर रहा है तो डेटर कम हो जाए. एब्सोल्युटली राइट. पैसे देता है तो डेटर कम हो जाता है. बराबर है. तो फिर बढ़ेगा कब? व्हेन डज अ डेटर इंक्रीज? When he doesn't pay the money. When we sell goods to Sell him. the goods. When you sell the goods on credit, that time the debtor. Okay? जितना बेचोगे तब डेटर बढ़ेगा. ओके जब पैसा देगा तब डेटर कम होगा. Being cash received from Salman Khan. Being cash received from Salman Khan. ये on account देख के confuse मत हो ना. On account मतलब not bank account. On account मतलब it's normal way of saying. ट्रांजैक्शन चल रहा है, बाकी पैसा देना बाकी है. अभी जैसे देखो सलमान खान को हमने कितने का गुड्स बेचा था, ऊपर कहीं होगा. हमने सलमान खान को कितने का गुड्स सेल किया था यहाँ पे? 80,000. कैन यू सी दैट? 80,000 का सेल किया था. लेकिन उसने पैसे कितने दिए अपने को अभी? 35. तो बाकी पैसे देगा 10-12 दिन बाद दे. अभी 35 दिया है, बाकी 45 थोड़ा दिन बाद दे, तभी उसकी एंट्री करें. अभी कितने की एंट्री करनी है? सिर्फ 35 जितना पैसा दिया. इज क्लियर? पहले ऑलरेडी इज योर डेटर फॉर 80,000. इज योर डेटर फॉर 80,000. आउट ऑफ दैट ही गिव यू 35. तो 35 से वो कम हो. अभी भी वो डेटर है. अभी भी वो डेटर है. कितने अमाउंट का डेटर है वो? 45,000. 45 का डेटर. जब वो 45 दे देगा तभी वो डेटर जीरो है. नहीं बात? लास्ट वन was the next in line. Arnav Sundar, tell me. Paid cash to Amitabh on account. Sir, Amitabh account and cash account. बहुत Sir, बढ़िया. Amitabh account will be debited and cash account will be credited. एकदम perfect. Amitabh debit, cash credit. किस खुशी में? Why? Sir, because we had purchased goods from him on account on credit. Okay. So we are the credit. So we are the debtors to him. वो हमारे लिए कौन है? वो Sir, वो हमारा so creditor. हाँ, वो हमारा क्रेडिटर है. और अभी हाँ. हमने उसको पैसा दिया. हाँ. तो क्रेडिटर बढ़ेगा कि घटेगा? Sir, घटेगा. घटेगा. What is creditor for a business? Asset, liability. Asset. Creditor is asset. एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है. डेबिट क्यों किया? Sorry sir, liability. लायबिलिटी. क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम. लायबिलिटी घटा ना, कम हुआ तो डेबिट. हाँ. एंड कैश Increase. So decrease. पैसा दिया, कैश डिक्रीजेस, तो एसेट बढ़ा कि घटा? घटा. लायबिलिटी भी कम हुआ, एसेट भी कम हुआ. Asset भी कम हुआ. लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, एसेट कम, क्रेडिट.
Yes, sir. कड़क रखो रूल, या तो ट्रेडिशनल अप्लाई करो. ट्रेडिशनल में क्या है, अमिताभ इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बस. कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज अप. बराबर. तो अमिताभ Yes, sir. अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड कैश टू अमिताभ ऑन, पेड कैश टू अमिताभ ऑन. परफेक्ट है. अब लास्ट में अगर टाइम मिले तो टोटल करना. ये टोटल आप यू डिड द टोटल. द टोटल 973,500. बराबर है. 973,500. एनीवन एल्स हैज डन? ये तो घरे कर जो, आराम से कर जो. 973,500. ऐसा मिला तुमको भी 973,500. घर पे कर लेना, नहीं तो टोटल इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. 973,500. बराबर. Now that's your sum. Any doubt in this problem? Check it. Any query? Anything you want to ask? सर गलती से एक ऊपर एक नीचे हो गया तो का 31st और 31st का 30 पे कर दिया. डेट वाइज जाना है, इसके लिए ध्यान रखना है. बट हो गया तो ठीक है, एक आध ऊपर नीचे. खाली कैंसिल मत करना उसको. कैंसिल करोगे तो फिर ज्यादा मार्क्स कटोगे. उसको डेट बराबर दे दे, 30th और 30th डेट बराबर. बट ट्राई टू गो डेट वाइज. ट्राई नॉट टू डू ऊपर नीचे. सम टीचर्स दे माइट कट. जर्नल है तो ट्राई टू गो डेट. नाउ let's take the next problem, that is sum number 7. Sum number 7. So can you wait for 2 minutes to draw that too? Yes, I'm also drawing. You also draw. Sum number 7. What heading you will write? The journal of Neha. Of Neha. Neha. The journal of Neha. A particular LF debit rupees and credit. अच्छा, अगर ऑफलाइन क्लासेस का भी प्लान है अभी स्टार्ट करने का, तो ऑल ऑफ यू आर फाइन विद दैट, राइट? एनीवन एनी इश्यू विद ऑफलाइन, कमिंग ऑफलाइन? जलसा तो करो जो बता लो ना, देवलाली जैने કે હવે ક્લાસીસ પણ ઓફલાઈન તો આવી જ શકે. બરાબર છે ને? Anyone problem with offline? टेस्ट तो अभी ऑफलाइन ही होगा. लेक्चर्स भी लेट्स सी. अभी ये थर्ड वेव ज्यादा पिकअप नहीं करना है, मोस्टली तो नहीं होगा. वैक्सीनेशन इतना बढ़ गया है. होपफुली वी कैन स्टार्ट. Sum number 7. See sum number 7. Draw किया? Done. The journal of Neha. The heading is in the journal of Neha. First one. यहाँ पे है दक्ष मेहता. Tell me the two accounts. Neha commence business with cash. Cash account to capital account. Cash will be debited as it is an asset and it is increasing, and capital is credited as it is a capital. Increases. It increases. Yes. Capital is capital, but it increases, so credit. Cash is asset. Asset increases, so debit. Okay.
So cash account debit to capital account, that's 1,60,000. Cash account debit to capital account, that's 1,60,000. Being cash introduced in business as capital. Cash introduced in business as capital. Okay? Cash introduced in business as capital. All right. Then next one, third one. Third को हो रहा है ये 3rd of July है. Sorry, 3rd of July. 3rd of July. We'll answer this. Lauki. 3rd July. She bought goods as her capital in the. वो goods भी लेके आई है इसका. तो क्या कर? You said Lokik? Lokik. Okay. Yes. Yeah, she brought goods as her capital in the beginning. Yeah. So, just a second. Goods account and this capital account, I guess. You are right. Partially, you are right. मैंने काफी सारे colleges भी accept करते हैं. Okay. और NM Mitibai again. They will go for which account for this? Purchase account. Okay. Sir, हमने purchase तो किया नहीं है. Then how can we use purchase? Because ये goods आप बेचने वाले हो future. Okay? That's why you can use purchase. Got it? So purchase account भी use कर सकते हो या goods account भी use. तो मैं दोनों लिख रहा हूँ यहाँ पे. Either you write goods के जगह stock भी use कर सकते हैं. Goods या फिर stock account. So this is an exceptional type of sum, right? Exceptional in the sense. थोड़ा अलग है वैसे. हाँ, थोड़ा अलग है. Yes. क्योंकि goods या stock भी लिख सकते हो या फिर क्योंकि बाकी सब colleges except for NM, Mitibai and पोदार भी चला लेते हैं. NM और Mitibai में purchase use हो. बाकी सब colleges they will accept goods account या stock account. NM and Mitibai they will expect purchase account. Okay? Sir, I didn't understand this entry. I'll come to the explanation. तो अभी पहले लिख लो goods या stock account debit या purchase account debit to what? Capital. अभी देखो 40,000. इसका हुआ क्या है? ओनर जो है बिजनेस में क्या लाया? कैपिटल लाया बराबर, लेकिन क्या लाया? गुड्स. कैश लाया कि स्टॉक लाया? गुड्स लाया. गुड्स इंट्रोड्यूस्ड है ना. गुड्स इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल. मुझे एक बात बताओ, अगर ओनर पैसे लाता बिजनेस में तो आप क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट एंड कैश एंड कैपिटल. कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा. अगर ओनर फर्नीचर लाता बिजनेस में तो क्या एंट्री करते? फर्नीचर एंड कैपिटल. अगर ओनर मशीनरी लाता बिजनेस में तो मशीनरी एंड कैपिटल. वैसे ओनर गुड्स लाए. गुड्स के लिए क्या अकाउंट यूज करना है? दो अकाउंट का पॉसिबल, या तो गुड्स या तो परचेज. तो अभी मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज एक्सेप्ट गुड्स. गुड्स मतलब वो स्टॉक लेके आया. लेकिन बेसिक मीनिंग क्या होता है स्टॉक का? स्टॉक अकाउंट कब यूज होता है? जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसके लिए आप स्टॉक यूज. अभी ओनर शुरू में जो गुड्स लाया, क्या आप 12 महीने तक ऐसे रखोगे गोडाउन में? व्हाट यू विल डू ऑफ दोस गुड्स? विल सेल इट ना. ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी लेके आया गुड्स. फॉर एग्जांपल जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका. ओके, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है. उसका घर पे 2 मोबाइल पड़ा था. घर पे 2 मोबाइल फोन पड़ा था. वो बिजनेस में लेके आया बेचने के लिए. बोला सेकेंड हैंड बिक जाएगा. तो वो क्या लाया बिजनेस में? इज ही गेटिंग कैश और गुड्स? Goods. True. But can we use goods account? Which is better? Should we use goods or should we use purchase? Goods use करते हो ठीक है, but goods किसके लिए होता है? जो unsold goods पड़ा हुआ है at the year end. Will you keep those mobile phones in the business for 12 months as it is? No. You will sell it right in the course of 2-3 months. Yes, sir. So that's why better account is purchase account.
परचेज मतलब इट इज लाइक एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. एक्सपेंस बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, और वो आप फ्यूचर में बेच दोगे तब आपकी इनकम होगी, सेल्स. जब बेचोगे तभी सेल्स अकाउंट. तो जैसे आप खरीद के लाते हो तो क्या होता है, परचेज एक्सपेंस बढ़ता है और कैश कम होता है. यहाँ पे ओनर लाया तो परचेज एक्सपेंस बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा और कैपिटल, ओनर इज गेटिंग, दैट्स व्हाई. इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया. बिजनेस पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. व्हाट आर द टू? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने पे किया बिजनेस. व्हाट आर द टू अकाउंट? Sir, one would be cash account. Cash and electricity. It is an account. Electricity you can use. Electricity expense and cash. Yes. Right? Electricity expense debit, expense बढ़ा, cash कम हुआ तो credit. Right? अब बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर ने घर के पैसे से भरा, बिजनेस के पैसे से. बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर ने घर के पैसे से, तो क्या एंट्री, तो क्या दो अकाउंट? Electricity and capital. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा और ओनर दे रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है. सिमिलरली ये परचेज एक्सपेंस है बिजनेस का, क्योंकि गुड्स है, बिकने वाले हैं, तो परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन पैसा बिजनेस से नहीं जा रहा है, ओनर ला, ओनर दे रहा है, इसके लिए परचेज टू कैपिटल. परचेज टू कैपिटल. एक और एग्जांपल लो. Paid salary to employee. What are the two accounts? You pay salary to your employee. What are the two accounts? Cash account. Cash and Salary. salary and cash. Salary and cash. Salary expense debit. Cash goes out, so credit, right? अब imagine आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, लेकिन बिजनेस के पैसे से नहीं, घर के पैसे. Salary and capital. Salary and capital. Salary expense will increase and owner का capital will increase. तो ओनर ने डायरेक्टली पे. बिजनेस का पैसा बाहर गया नहीं. समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे परचेज एंड कैपिटल. बिजनेस का एक्सपेंस है परचेज, बट ओनर इज द गिवर ऑफ दिस. ओनर का कैपिटल बढ़, परचेज टू कैपिटल. गुड्स भी यूज कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है. याद रखना, हायर स्टैंडर्ड्स वगैरह में यू विल बी यूजिंग परचेज ओनली. तो बेटर याद रखना दोनों. कॉलेजेस अभी भी थोड़ा सिस्टम में, पुराने सिस्टम में, तो दे विल यूज गुड्स और स्टॉक. ओके, एनएमटी बाय दे विल एक्सपेक्ट परचेज. हो गया क्लियर सबको? एनी डाउट इन दिस? No, sir. बढ़े आगे. Sir, so practically we can use purchase account or परचेज ही यूज करें, प्रैक्टिकली परचेज ही यूज. क्यों? प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है. गुड्स आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो परचेज. थर्ड पार्टी को बेचा तो सेल्स. थर्ड पार्टी को बेचा तो सेल्स. आ रहा है, ओनर ला रहा है, खरीदा है तो परचेज, बेचा तो सेल्स. और कहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया, फ्लड, थेफ्ट, तो परचेज ही कम होता है, उसके लिए भी परचेज है. स्टॉक किसके लिए यूज होता है? जो अनसोल्ड गुड्स है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी के लिए स्टॉक. और कहीं स्टॉक अकाउंट यूज होता है? अनसोल्ड गुड्स लाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी के लिए स्टॉक. बाकी सब जगह आ रहा है तो परचेज, बेचा तो सेल, और कहीं लॉस बाय फायर फ्लड थेफ्ट गया तो परचेज को कम करो, लॉस को बढ़ा. परचेज को कम करो, लॉस बाय फ्लड को बढ़ा दो. परचेज को कम करो, ड्रॉइंग्स को बढ़ा. मेजॉरिटी दो ही अकाउंट. हाँ बोलो. Or even if you have taken purchase in the narration, you have to write goods only. हाँ हाँ हाँ, वो तो represent goods को ही करता है ना परचेज. Being goods introduced in business as capital. परचेज वो अकाउंट है, it represents goods only. जैसे आपने मोटर कार खरीदी तो आप व्हीकल अकाउंट यूज कर सकते हो, लेकिन नरेशन में क्या लिखो? मोटर कार खरीदी, ट्रक खरीदी, वैन खरीदी, सबके लिए अकाउंट में आप व्हीकल अकाउंट यूज. The purchase represents goods in the account. Right? Clear with that? Purchase better है, purchase use करना. Some colleges might go for stock या goods. So stock या goods भी कर. Next one. Sold goods to Pooja on credit. Sold goods to Pooja on credit. Tisha, sorry. Sold goods to Pooja on credit. Pooja account to sales account. Very good. सीधा आंसर આવી ગયું. Pooja account debit to sales account. Why?
Reason, Tisha? Asset increases, so debit. Sorry, repeat. Voice cracks. Pooja is our asset, Yes. so it increases, so Yes. debit. Yes. How Pooja is asset? Who is she? She's our debtor. Very good. Yeah. And And sales increases, so income increases, so credit. absolutely perfect. Absolutely perfect. 65,000 is the sale value. तो इसमें profit किधर गया? Where is the profit? I'm not finding any profit. So it would be income minus expense. हाँ, जब income minus expense करोगे, तब अपने आप profit पता चल जाएगा, right? 65 का गुड्स आप 65 में थोड़ी बेचोगे, कुछ प्रॉफिट लगा के बेचो. सेल्स के अंदर प्रॉफिट पड़ा हो, वो इनकम माइनस एक्सपेंस ईयर के एंड में होता है. सब इनकम माइनस सब एक्सपेंस. अब साल का प्रॉफिट और लॉस मिलता है जो कैपिटल में ऐड हो जाता है इन द बैलेंस. बैलेंस शीट आपको बताई थी ना, वो ईयर एंड पे बना. कभी भी बना सकते हो, जब जी चाहे तब बना सकते हो, लेकिन जनरली बनती है ईयर एंड बैलेंस. देन come to the next one. Purchased a horse for cash. Purchased a horse for cash. Tanisha, Yes, sir. what are the two accounts? Horse account, cash account. One is cash account, and second is purchase account or horse account. दोनों नहीं. Um, परचेज नहीं आ सकता क्योंकि गुड्स नहीं. हाँ. और हॉर्स बराबर बोला है, लेकिन हॉर्स के जगह पे लाइव स्टॉक. याद आया? लाइव स्टॉक. Yeah. Live stock is what? Animals used in this. So cash account and Livestock account to cash account. Why livestock debit? Because they both are real accounts. Debit what comes in and credit what goes out. बराबर. Debit what comes in and credit what goes out. Okay, एसेट ही है. एक एसेट बढ़ा, एक कम हुआ, या एक आया एक गया, दोनों एसेट है. तो being horse purchase for being horse purchase for cash. Okay, horse के लिए we are using livestock. Horse के लिए we are horse, sheep, cow, buffalo. Okay, donkeys in the business, elephants, सबके लिए livestock. Then what is the next one? 17th one. 17th one आपको है ना ट्रेडिशनल में फिट नहीं होगा. यहाँ पे फ्लो आता है ट्रेडिशनल, लेकिन मॉडर्न में फिट हो. अगर आपका दिमाग चलता है तो मॉडर्न में फिट हो. 17 दिया. आर यू देयर? दिया भविष्य. दिया, आर यू लिसनिंग? नेटवर्क खराब है. अथर्वा, आर यू लिसनिंग? देखो नेक्स्ट वन 17. Amit's account which is overdue is closed as the amount is not recoverable 7,000. Think and tell me the two accounts. But that account. Atharva. Sir, one is Amit's account and the other will be Anyone else? cash account. Bad debt account. एक अकाउंट बैड डेट अकाउंट आएगा, क्योंकि पता है इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, दैट इज कॉल्ड बैड डेट. वन अकाउंट इज बैड डेट. व्हाट इज द अदर अकाउंट? Amit account. और कैश. Sir, Amit, because he's a liability. Amit is a liability. Sorry, an expense. Amit is an expense. Yeah, because He's an asset. Asset. He's a debtor. डेटर से जो पैसा नहीं आता है उसको आप क्या बोलते हो? बैड डेट बोलते हो, है कि नहीं? अभी गम्मत सुनो. अमित से 7,000 लेना था. That means he was your debtor and he did not pay you that money. What if he would have paid you? Then what would have been the two? Amit account and cash account. Cash बढ़ा, debit. Amit घटा, credit, right?
बराबर ना, कैश बढ़ा तो डेबिट, अमित घटा तो क्रेडिट। अगर उसने पैसा दिया होता तो, अभी पैसा दिया ही नहीं तो क्या बोला जाता है उसको? बैड डेट। बैड डेट। तो एक अकाउंट बैड डेट हुआ। एंड व्हाट इज बैड डेट फॉर अ बिजनेस? लॉस। लॉस, राइट? एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट। और अमित पैसा देगा अभी फ्यूचर में, So asset decrease. तो एसेट डिक्रीजेस तो क्रेडिट। सो यहाँ पर मॉडर्न बराबर फिट होगा आपका। बैड डेट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीजेस सो डेबिट, एंड अमित इज एसेट। क्यों एसेट? क्योंकि डेटर था, तो डेटर डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? समझ में आया? पैसा देता तो भी डिक्रीज होता, लेकिन पैसा नहीं दिया तो भी डिक्रीज कर रहे हैं। व्हाई आर वी डिक्रीजिंग अमित? Because now he won't pay us money. Because now he won't pay us. Now there is no chance of getting the money from him. He is bankrupt. So Amit as an asset decreases, so credit. Is this clear? Asset कम हो रहा है, लेकिन अभी देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इसमें एक और कंसेप्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। Being bad debts from Amit recorded. Narration लिख लो। Bad debts from Amit recorded. Being bad debts from Amit recorded. अब देखो मुझे एक बात बताओ, आप रेंट पे करते हो, रेंट। सो रेंट पे किया, व्हाट आर द टू अकाउंट? Rent account, cash account. रेंट एंड कैश, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। आपने सैलरी पे की, तो व्हाट आर द टू अकाउंट? सैलरी एंड कैश, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड कैश, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इन सभी में क्या हो रहा है? आप ये एक्सपेंस में कैश दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कैश दे रहे हो। सो दे आर कॉल्ड एज कैश एक्सपेंस, दे आर कॉल्ड एज कैश एक्सपेंस। बिजनेस में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, कैश एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं। ऐसा कैसा एक्सपेंस? कैश जा ही नहीं रहा है फिर भी एक्सपेंस। This is an example of a non-cash expense. देखो, bad debts is an expense, true, but is cash going out? What is decreasing? Debtor is decreasing. So when some other asset decreases apart from cash, then it is called as a non-cash expense. This is one of the example of non-cash expense. Did you understand? एक्सपेंस है लेकिन कैश नहीं घटा। क्या घटा? डेटर घटा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं नॉन कैश एक्सपेंस का। आपका फर्नीचर जल गया, 5,000 रुपए का फर्नीचर जल गया, लॉस्ट बाय फायर। सो व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Purchase account. फर्नीचर, fire account फर्नीचर, and फर्नीचर furniture जला, account. फर्नीचर जला। लॉस बाय फायर एंड फर्नीचर जला ना, तो फर्नीचर। लॉस बाय फायर एंड फर्नीचर, अभी लॉस बाय फायर लॉस, लॉस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। फर्नीचर जला ना, तो फर्नीचर घटा तो क्रेडिट, राइट? तो लॉस बाय फायर एंड फर्नीचर। बट इज इट अ कैश एक्सपेंस और नॉन कैश? Non-cash expense. फरक समझ में आ रहा है दोनों का? कैश एक्सपेंस म्हणजे काय? यू पेड इन कैश, वेजेस पेड, salary paid, rent paid, electricity paid, telephone charges paid, insurance paid, ये सब cash expense हुआ। What is a non-cash expense? When cash doesn't go out of the business, some other asset decreases apart from cash. You getting that? Some other asset decrease. जैसे कि यहाँ पे bad debt to Amit, is cash going out? Will you pay anyone bad debt? मेरा डेटर पैसा नहीं दिया, ये ले पैसा ले। मेरा डेटर पैसा नहीं दिया, ये ले पैसा ले। Will you pay bad debt to anyone? Your debtor is decreasing. That is what is bad debt. Are you understanding this? So expense बढ़ा लेकिन debtor कम, non cash expense. Goods lost by fire आपने किया, goods lost by fire, goods lost by fire, furniture lost by fire. What is decreasing from business? Goods lost by fire, furniture lost by fire. गुड्स और फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है। इज कैश गोइंग आउट?
No. Is it a cash expense or a non-cash expense? Non-cash. Non-cash. फर्क समझा? कैश और नॉन कैश, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सीए इंटर में काम आएगा, मतलब अभी भी आएगा ही, सीए इंटर में बहुत ज्यादा काम। कैश एंड नॉन कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बना, नेक्स्ट ईयर भी हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, 12th स्टैंडर्ड में भी है, लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा है, लेकिन सर में बहुत ज्यादा। सो कैश एंड नॉन कैश, ओके, कैश एंड नॉन कैश, और भी एग्जांपल आएंगे कैश और नॉन कैश, आगे भी आएंगे। तो याद रखना ये नॉन कैश एक्सपेंस है बैड डेट, ओके, बैड डेट इज अ नॉन कैश। देन बढ़ते हैं आगे, एनी डाउट टिल दिस पार्ट? बैड डेट समझा? बैड डेट में क्या होगा? बैड डेट खर्चा बढ़ेगा, डेटर घटे, ओके। ये ट्रेडिशनल में फिट नहीं होने वाला है, सोचो ट्रेडिशनल अप्लाई करो। व्हाट इज बैड डेट इन ट्रेडिशनल? व्हाट इज बैड डेट इन ट्रेडिशनल? Nominal. So debit all expense and loss. What is Amit? Personal. What rule you will apply to Amit? Debit the receiver or credit the giver? Is Amit giving us anything? Credit the giver? Debit the receiver. But already bad debt तो debited ही है, debit all expense। तो अमित ना तो रिसीवर है ना तो गिवर है, इसलिए बराबर फिट नहीं हो रहा है वहां। okay? There are certain places where your traditional concept won't fit. This is one of those, okay? But modern will fit perfectly. Modern बेटा expense बढ़ा, asset घटा, कौन सा asset घटा? Debtor घटा, okay? Expense बढ़ा, asset घटा तो credit। Next one देखो अभी, goods are burnt by fire. Goods are burnt by fire. What are the two accounts? Table में भी किया था, याद है आपको? Goods burnt by fire. Goods lost by fire and Purchase account. उसी के जगह पे परचेज। Cash account. Loss by fire account. Loss by fire, जल गया, goods जल गया ना, one account your loss. What is that loss? Loss by fire. Name it as loss by fire. What is the other account? Purchase or goods lost by fire. Purchase या फिर goods lost by fire. Which is the better one? Purchase. Okay? क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? Loss by fire account debit and purchase account credit. Loss by fire account debit, क्यों? तो लॉस बढ़ गया। और गुड्स, अगर गुड्स यूज कर रहे हो तो गुड्स आर रियल, रियल घट गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स घट गया, तो गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट करो, या फिर उसके जगह वी कैन यूज परचेज। गुड्स लॉस बाय फायर या फिर परचेज। okay? परचेज वाला लॉजिक याद है आपको? बताया था, याद है लॉजिक ऑफ परचेज? आपने 100 मोबाइल फोन खरीदे, 100 मोबाइल फोन खरीदे, उसमें से 10 मोबाइल फोन जल गए, तो क्या वो 10 मोबाइल फोन परचेज में ही पड़े रहेंगे एज योर एक्सपेंस? No. परचेज को कम करो और उसको ट्रांसफर करो दूसरे एक्सपेंस, लॉस बाय फायर। परचेज एक्सपेंस को घटाओ, लॉस बाय फायर को बढ़ाओ। ऐसा करने का रीजन याद है आपको? अलग अलग करने का रीजन क्यों अलग अलग किया हमने? नहीं करते अलग अलग, परचेज में ही रहने देते तो फिर हमें तो प्रॉफिट नहीं दिखता पूरे साल का एंड। हाँ, प्रॉफिट तो दिखता, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस का बराबर एनालिसिस कर पाते? अगर परचेज में ही रहने देते तो आपको क्या लगता है? बिजनेस खराब कर रहा है, बट इज द बिजनेस डूइंग बैड? नो। ओके, लॉस बाय फायर की वजह से लॉस हुआ ना, तो क्या हर साल होगा लॉस? विल दिस लॉस अकर एवरी ईयर? इट इज नॉट ड्यू टू योर इनकॉम्पिटेंस, इट इज ड्यू टू योर अनसर्टन इवेंट, हर बार होती नहीं है। तो आप क्या करते हो? 100 मोबाइल फोन खरीदा है ना, तो परचेज को तो पहले ही डेबिट कर दिया, 100 मोबाइल फोन खरीदा तो परचेज डेबिटेड है, परचेज बढ़ा है, बट उसमें से 10 लॉस हो गए, लॉस बाय फायर। तो 10 क्या करने का? परचेज में से कम कर देने का और लॉस बाय फायर में बढ़ा। लॉस बाय फायर इंक्रीजेस, परचेज डिक्रीज। इज क्लियर? तो लॉस बाय फायर बढ़ा, परचेज घटा, और कितना है आपका अमाउंट? 3009। सम कॉलेजेस पुराने वाले आपको बोलेंगे गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट, यूज गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट। गुड्स मतलब गुड्स रियल अकाउंट, वो तो आता है ना लॉजिक, लॉस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, गुड्स आर गोइंग आउट, जल गए, क्रेडिट व्हाट गोज।
तो गुड्स अकाउंट यूज कर रहे हो तो रियल अकाउंट बन जाएगा, परचेज यूज कर रहे हो तो नॉमिनल। बेटर इफ यू यूज परचेज, कॉलेज के हिसाब से कभी कभी गुड्स आपको यूज करना। बोलो ये वाला समझा, लॉस बाय फायर एंड गुड्स लॉस बाय फायर, ये सबके लिए यही है। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फ्लड्स, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, सबके लिए सेम। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कहीं और जा रहा है तो गुड्स कुछ या फिर नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। टेल मी, is this a cash expense or a non-cash expense? Is lost by fire? Non-cash. Non-cash expense. All of you are able to identify. Cash is not decreasing. Some other asset, okay? Goods or furniture, some other asset. That side is a non-cash. Come to the next one. Received cash on account from Rahul. क्या होगा दो अकाउंट? Received cash on account from Rahul. Cash. Sir, one would be cash account. Cash account and Rahul account. Rahul account. बराबर है, cash account and Rahul account. What should be debited, credited? Veda Rane, tell me. Cash account will be debited and Rahul account will be credited. Why so? Why? Because cash is an asset, and if asset increases, so debit. Okay. And Rahul is your creditor then. Rahul paid us. Rahul paid. So why he will pay us? Because he is debtor. He's your debtor. So done. So debtor increases or decreases? Debtor decreases. Decrease. Debtor paid you, so debtor decreases. Yeah. Okay. समझ लो ना? The cash increases so debit and debtor decreases so credit. Debtor है वो तुम्हारा. Why Rahul is your debtor? All of you got that? Rahul is your debtor because he is paying you. He won't pay you as it is ना. शक्ल पसंद आने की तो पैसा नहीं देगा ना वो. आपने उसको गुड सेल किया है, इसके लिए वो पैसा दे. Cash and Rahul. Cash increases, Rahul decreases. So credit or being cash received from Rahul. Okay. Next one, 25th one. कौन था यहाँ पे? मनन शाह. अंधेरे में बैठे हो मनन शाह. Are you able to listen? Yes, sir. बोलो 25th. Goods distributed as free sample. Sir, marketing account. Advertise. Marketing के जगह use advertise. What is the other account? Goods account. हाँ, वापस देखो, वापस goods है. Goods के जगह पे which account you can use? Purchase. Purchase account. सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट. जो लॉस बाय फायर का था वही मार्केट. आपने 100 मोबाइल खरीदा, परचेज 100 मोबाइल का दिख रहा है, उसमें से 10 मोबाइल फोन आपने फ्री सैंपल्स के फॉर्म में दे दिया. व्हाट आर फ्री सैंपल्स? क्यों देते हैं फ्री सैंपल्स? Advertising. एडवर्टाइज. आप फ्री सैंपल के फॉर्म में मोबाइल दे रहे हो, वापरो बिंदास फ्री में. अच्छा लगे तो ऑर्डर प्लेस करना. आपने 10 मोबाइल फोन ऐसे ही फ्री में दे दिए, तो क्या वो परचेज एक्सपेंस होना चाहिए? नहीं. वो एक्सपेंस कौन सा है आपका? एडवर्टाइजमेंट. गॉट इट? तो परचेज में से कम करो और एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दो. वन इज परचेज अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट, या फिर गुड्स अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट. लेकिन गुड्स के लिए कौन सा लिखना है डिटेल में नाम? Purchase. परचेज तो ठीक है, परचेज या तो परचेज या तो फिर गुड्स, बट खाली गुड्स मत लिखना. टू स्टॉक. नहीं, गुड्स पूरा राम कहानी आगे लिखने का. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल.
okay? या फिर परचेज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फ्लड, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वैसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, either goods distributed as free sample या purchase. So tell me rule applicable to advertisement. What rule you will apply to advertisement? Sir, it's an expense, so expense increases, so debit. Yes, expense increases, so debit. What about purchases? Suppose purchase use कर रहे हो तो what about purchases? What rule you will apply to purchases? Hello? Purchase is also expense. But Yes, sir. does it increase or decrease this time? It decreases. 100 मोबाइल खरीदा तभी बढ़ा, 10 मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में दिया तो परचेज को कम करो, एडवर्टाइजमेंट को. Is clear? Yes, sir. Yes. Purchase decreases, advertisement increases. What if you are taking it as goods? Goods will be considered as what? Asset. So goods आ रहा है, जा रहा है. जा रहा है, sir. जा रहा है. So asset decreases, so correct. Asset decreases, so correct. Both you will get the same answer. Expense decreases, so credit, या फिर asset decreases, so. Okay. Is this clear? All of you got this? Advertisement. Okay. Advertisement to goods distributed as free sample, advertisement to purchase. Being goods distributed as, और क्या रीजन से आप गुड्स दे सकते हो? ये तो सैंपल से दे सकते हो, या तो घर पे लेके जा सकते हो, ड्राइंग्स हो सकता है. बिजनेस में से और कहाँ जा सकता है गुड्स? लॉस हो गया, लॉस बाय 5 लाख है. और कहाँ दे सकते हो आप गुड्स? और कहीं पे चैरिटी, चैरिटी में दे सकते हो. यस, चैरिटी में दिया तो क्या एंट्री करोगे? मिसलेनियस डाल सकते हो. यस, और बड़ा अमाउंट है तो चैरिटी भी लिख सकते हो. मिसलेनियस या चैरिटी टू व्हाट? Again purchase. Again purchases या goods given as charity. Purchases या goods given as charity. और जेठालाल ऑफिस में बैठा था, बागा आया, बागा ने बोला सेठ जी इस महीने का पगार मुझे कैश में नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए. जेठालाल क्या उठा के देगा उसको? मोबाइल फोन दे देगा. कैश नहीं देगा, मोबाइल फोन दे देगा. तो क्या दिया तुमने? सैलरी. सैलरी पे की, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फोन. फोन मतलब गुड्स, राइट? फोन में डील करता है ना वो, तो फोन उसका गुड्स हुआ. तो क्या एंट्री करोगे? सैलरी के फॉर्म में दे दिया गुड्स, तो सोचो. Salary account. सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस बढ़ा टू Goods account or purchase account. गुड्स या पर. गुड्स के लिए क्या लिखना है? खाली गुड्स नहीं, गुड्स गिवन एज Salary. जो भी है राम कहानी लिखना है. गुड्स गिवन एज सैलरी. क्यों ऐसा राम कहानी लिखने का? क्योंकि पता चले अलग अलग किधर गया है. ये ट्रेडिशनल में चलता है, मॉडर्न में तो कुछ नहीं है, सब परचेज से कम हो रहा है, सेपरेट अकाउंट रीजन बन जाता है अपने आप. ट्रेडिशनल है, इसके लिए अलग अलग नाम लिखने. गुड्स गिवन एज सैलरी, गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या फिर पर. तो आई एम गिविंग यू 5 minutes to go through this sum. This sum was very important. Some different entries in this sum. So please go through this sum. 5 minutes I am giving you. आराम से देखो, एंट्रीज देखो, समझो इसको अच्छे से. Yeah, if we got disconnected. Come on, go through the entries properly and tell me again if you have any doubt in this. Take 5 minutes.
revise properly. Understand it. All the transactions. टेंथ का रिजल्ट आया, कितना आया परसेंटेजेस? Who got the percentages? बोलो उसको मिला कितना आया वो तो बोलो। मेरे को करना ही है मैसेज, पता तो चल अच्छा बुरा जो भी आया। Who has got it? One by one. Please raise your hand. Yes, Daksh, how much you got? 90%, sir. 90? Yes. Is it? 80.4%. 80.4. Laukit? 95.6%. 95.6. तो टेंशन नहीं था ना वैसे सीईटी नहीं। स्टिल फर्स्ट प्रेफरेंस तो सीईटी को है ना सर? हाँ नहीं, लेकिन वो कोटा में नहीं है। कोटा में देयर इज नो प्रेफरेंस ना। एनएम જોઈએ છે ને? यस। તો મળી ગયો છે ગુજરાતી। 90%, sir. 90%. Very good. Bansi Patel? 90%. 90. Very good. Yashvi Gangar? 83.80. 83.8. 83.8. थोड़ा अच्छा है। Then Manan Shah? 85%. 85. Mahi? 88. 88. Siddhi? 95%. 95. Good. Kushi? 97. 87. Wow. Border is on. You are from which school? Godrej. Godrej. Yeah. Ishika? 92. 92. Good. Insika? 95. 95. Godrej. Yeah. Real Patel? 90. Dot 90. Real? 89.80, sir. Sorry, 89.8. 90, no, but 90. Disha? 87. 87. Ninad? 90.4. 90.4. Disha? Sir, 87. 87. अभी आई थिंक जो लोग थोड़ा 90 के नीचे हैं, 90, 91 के नीचे हैं, यू कैन गो फॉर थोड़ा सीईटी का प्रिपरेशन ऑल्सो साथ में। बट 90 to 93 प्लस है तो आई डाउट सीईटी का कोई जरूरत है। ओके, बिकॉज द ईयर ऑन ईयर कट ऑफ्स ऑफ एनएम मिटी बाय गुजराती कोटास हैव कम टू मिनिमम ऑफ 90 तक। मतलब एनएम का गुजराती कोटा इज अराउंड 91%। लास्ट कट ऑफ 91 पे खत्म होता है। और मिटी बाई का गुजराती कोटा लास्ट ईयर इट केम टू अराउंड 89.2, बट उसके बाद भी कुछ सीट्स बच गई थी। 90 हायर साइड पे आप 90, 92 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनएम एट 92 गुजराती कोटा कट ऑफ एंड मिटी बाई एट 90 गुजराती कोटा। तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि सीईटी पे अगर आपको चाहिए तो आप फोकस करके बेटर करने का ट्राई करें। बाकी कोटा में कोई प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस इज ओनली फॉर जनरल कैटेगरी। कोटा में जा रहे हो गुजराती कोटा तो प्रेफरेंस सीईटी का है ही। तो वैसे भी So even if someone gets CET में 85, 86 और जो भी 90 है, and someone has scored 95, 96 in boards, so preference किसको मिलेगा? वो अभी ये लोग ने बोला नहीं है। It should be best of the two according to me. It should be best of the two, but they haven't announced it yet. No. Like one person A has scored this much 85 and person B has scored 95, but in boards, not in CET. He hasn't even CET. नहीं boards. Pardon me? Percentage boards मतलब जो हायर है वही obviously। ये प्रेफरेंस का मतलब क्या है? जो कॉलेज का जनरल कैटेगरी का जो लिस्ट निकलेगा ना, उसमें पहले जो सीईटी वाले हैं, जिसमें सीईटी में जिसको 97, 98, 95% मार्क्स आएंगे सीईटी, वो लोगों को पहला लिस्ट और दूसरा लिस्ट दिया है।
So, but the first article that was published in the newspaper when they declared about CET, in that it was written that first all the students who are giving the CET will be given admission and then the people on basis of merit. So that way. नहीं that way तो फिर कोई भी वो तो फिर CET वाले को ही देगा ना, फिर Exactly. परसेंटेज का क्या यूज, ऐसा नहीं है। वो परसेंटेज तो CET में भी जो परसेंटेज आएगा उसको आपका ऑब्वियसली अभी CET वाले 80 को मिल जाएगा और बोर्ड में जिसको 97 98 आया उसको नहीं मिला, ऐसा नहीं होने, दैट इज एन इनजस्टिस। हाँ, खाली पहला दूसरा जो लिस्ट है वो CET वाले परसेंटेज जिसको हाई रहेंगे उनको प्रेफर, उसके बाद कॉलेज में जिसको हाई। ओके चलो गुड। बाकी लोग का अभी आया नहीं है ना, SSC एंड स्टेट बोर्ड का, सॉरी ICSE का, दे हैवंट डिक्लेयर्ड ICSE का। They were saying tentatively around 31st July. 31st. Is there any quota except Gujarati? Like NM में NM मीठी बाई is only Gujarati quota 50%. No, not caste wise. I'm saying. I'm talking about sports quota वैसे सब. हाँ होता है ना. You have this, but NM मीठी बाई में I doubt sports quota है कि नहीं. इसमें है, पोदार में है. पोदार में sports quota है. पोदार में ST SC OBC भी है. HR में सिंधी का है, HRS सिंधी कोटा 50%। तो बाकी स्पोर्ट्स कोटा इज आई थिंक अब तक तो पोदार में ही आया है जो भी आया है, वो लोग का 50% गुजराती है। और माइनॉरिटी कोटा होता है, माइनॉरिटी कोटा इज देयर इन ऑल द कॉलेजेस, जैन माइनॉरिटी एंड ऑल यू गेट दैट फॉर्म, आपको लेना पड़ता माइनॉरिटी, दैट इज वेरी लेस, बहुत कम सीट्स है, हार्डली 4-5 सीट्स, 5-10। ठीक है, कोई नहीं, मिल जाएगा, गुड परसेंटेजेस यू हैव। 92 प्लस है, 93 प्लस है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ पॉइंट टू 90 के 91 92 में थोड़ा बॉर्डर लाइन एनएमईटी में। बाकी है ना, इतना लोड मत लेना। 11th एंड 12th में जो भी कॉलेज मिले, टेक इट, टेक व्हाटएवर कॉलेज यू गेट। यू कैन आल्सो शिफ्ट द कॉलेज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स के बाद भी आप कॉलेज शिफ्ट कर सकते। तो ऐसा कुछ है नहीं कि 11th में मेरे को एनएमईटी बाय नहीं मिला तो दुनिया खत्म, डोंट वरी अबाउट इट। इट इज जस्ट क्या है कि थोड़ा 11th 12th है, ब्रांड नेम है, इमेज है, बराबर है, बट 11th एंड 12th के बाद वापस चेंज कर सकते हो। 12th बोर्ड सबका कॉमन ही रहने वाला है। 12th के बाद अगेन यू कैन शिफ्ट टू द कॉलेज, ओके, अदर कॉलेज ऑफ योर चॉइस। तो डोंट वरी, अभी है थोड़ा पैंडेमिक ईयर था, ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम बोर्ड, परसेंटेज सबका हालत खराब है, तो जो आया नसीब हुआ, अच्छा मिल गया, ग्रेस ऑफ गॉड, बैलेंस गुड। कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, वन स्टूडेंट स्कोरिंग 88% गॉट इन पोदार, पोदार्स कट ऑफ वाज 93, one student scoring 88 got in Podar, and one student scoring 93.1, 93.5 पे पोदार क्लोज हुआ, 93.1 था, उसको नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम था और लिस्ट वो लोग ने क्लोज कर दिया 93.5। फिर सब लिस्ट खत्म होने के बाद कॉलेज में सीट्स बच गए, तो रैंडमली जिसको भी कॉलेज अलॉट किया, अंधाधुंध रैंडमली दे अलॉटेड द कॉलेज। तो कम परसेंटेज वालों को दे गॉट पोदार, दे गॉट एनएम, दे गॉट मीठी बाई। 87% वाले को एनएम मिल गया, 88% वाले को एनएम मिल गया, लक बाय चांस। और 92 93 वाले अटक गए जनरल कैटेगरी, कोटा वाले 91 वाले अटक, ऐसा हालत। तो देयर इज अ लक फैक्टर इनवॉल्व, इसलिए बोल रहा हूँ, डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो। और वी नो तुम्हारा क्लासेस में ही जो काम है वो होने वाला है। कॉलेज इज जस्ट फॉर योर सपोर्ट एंड ब्रांड नेम, दैट्स। ब्रांड नेम चाहिए तो आप डिग्री में भी ले सकते हैं, बाकी कोई कॉलेज में भणतर पढ़ाने वाला इतना होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एनएम एंड बीटी। एनएम बीटी बाद टू सम एक्सटेंट पोदार, उसमें लेक्चर्स थोड़ा रेगुलरली होते, टीचर्स आते हैं, पढ़ाएंगे आपको, क्लास में भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, बट ओनली एनएम बीटी बाय पोदार टू सम एक्सटेंट। बाकी सब कॉलेजेस में लेक्चर्स भी ऐसा, सोमैया में 6 महीना छुट्टी रहने वाला है आपको, 6 महीना हॉलीडेज रहेगा। सोमैया में गए तो जलसा ही जलसा, 6 महीना नो कॉलेज, 6 महीना ही कॉलेज है। HR इज लीनियंट अबाउट कॉलेज लेक्चर्स, अटेंडेंस, अटेंड होना। KC में कुछ नहीं है, जैन में कुछ नहीं। SIS थोड़ा सिंसियर, SIS में थोड़ा बहुत लेक्चर्स होते हैं। और बाकी ये आपका सोमैया है, SK बोलो, SK में थोड़ा होता है, KJ में नहीं होता है, KJ में नहीं है, HR में नहीं है, KC में नहीं है, जैन में नहीं है, हिंदुजा में।
ये सब कॉलेजेस में लेक्चर्स कुछ होने वाला नहीं है, तो खाली सेकेंडरी सपोर्ट के लिए यू कैन, तो डोंट वरी, इतना टेंशन मत लेना. गुड कॉलेज, बैड कॉलेज, एवरेज कॉलेज, वॉट एवर कॉलेज यू गेट, टेक इट. 11 12 अभी है, पैंडेमिक ईयर है, तो लेट इट बी. 12th के बाद यू कैन ऑलवेज टेक इट. So is it advisable to change college after 11? नहीं, आफ्टर 11 डोंट शिफ्ट. सेंस ही नहीं बनता है एक साल के लिए, क्या बोर्ड्स ही है, सबका कॉमन है ना. व्हाई अननेसेसरी टेक 1 ईयर के बाद? डजंट मेक. करते हैं कुछ लोग, बट नॉट एडवाइजेबल. 11 12 इधर किया, कंटिन्यू देयर. इट्स ऑल अबाउट बोर्ड. वंस आफ्टर यू क्लियर बोर्ड्स. और 11th में भी कैसा था पहले, जब ऑफलाइन होता था, मतलब बिफोर पैंडेमिक जो ऑनलाइन भी होता था ना, उसमें आप एक कॉलेज में सिक्योर करके निकाल के दूसरे में शिफ्ट कर सकते थे एडमिशन. बट सिंस लास्ट ईयर वी सॉ दैट इन पैंडेमिक, जो कॉलेज में आपने सिक्योर कर लिया, फिर आपको दूसरा कॉलेज में आ भी गया और आपको करना है, तो वो निकालने भी नहीं देते. They don't allow you to cancel the admission from once the college is secure. एक बार secure हो गया, वो हो गया. ऐसा भी situation. They should allow. If the students want to shift, they should allow. But they weren't allowing last. ऐसा भी situation. तो है अभी थोड़ा लक फैक्टर, भगवान भरोसे. सीईटी का कैसा है, सीईटी की भी क्लैरिटी अभी तक आए नहीं है. बेस्ट ऑफ द टू लेंगे कि अपना 12th बोर्ड्स भी दिया और सीईटी भी दिया है ना, कि बेस्ट ऑफ द टू लेंगे कि फिर सीईटी आया तो सीईटी का स्कोर लेंगे. दैट आल्सो दे हैवंट क्लैरिफाइड. होपफुली दे शुड डू बेस्ट ऑफ द टू. लेट्स सी. देखा ये वाला सम? यस हंसिका, यू हैव डाउट? इशिका, आंसर. No, sir, I forgot the lower one. देख लो ये वाला सम, देख लो, चलो फटाफट. मम्मी मम्मी शाह म्यूट किया करो आंसर देने के बाद. मम्मी मम्मी इधर भी आया. चलो. क्या गो थ्रू किया? सेकेंड सम इज क्लियर. ओके. अभी ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 5. सम नंबर 5. I want you to do 1, 4, 5, 9 और 30. पहले 5 करो, then we stop. Sum number 5, पहले 5. I'll discuss them. Sum number 5 का first 5. Sum number 5 का first 5. Come on, try. On your own, all of you apply the rules. Traditional, modern, जो जमता है वो. Miss Nivedita, and arrive at account debited and account credit. Sir, yes. Sir, in the exam for the analysis table, we need to study both traditional or modern. Both traditional and modern. दोनों का क्वेश्चन, ट्रेडिशनल का भी होगा, मॉडर्न का भी. पैटर्न सेंड कर दूंगा मैं. ओके. Sir, the first chapter is not there, right? Sir, और अगर डेफिनेशन का वो अप टू द वर्ड नहीं होगा तो चलेगा? चलेगा. फर्स्ट चैप्टर है ना बॉस, डेफिनेशन वाला. हाँ सर, तो उसमें ओन वर्ड्स चलेगा. ओन वर्ड्स में ही लिखना है, रट्टा नहीं मारना है. मीनिंग समझना है, ओन वर्ड्स में लिखना है. और एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक टर्म में एग्जाम्पल देना जरूरी. एग्जाम्पल देना, ओके, इन योर ओन वर्ड्स, बट राइट विथ एग्जाम्पल. Sir, how many examples? Like One 2, example. 3 are enough? One example. 2, 3, if you know, you can write 1 to 2 maximum. One is also. One word example है तो you can write 2, 3. Sentence में explain करना है तो one example.
Fifth sum, Miss Nivedita, 1, 2, 3, 4, 5. So we have to do first 5. First 5. Only first 5. That is on 1, 5, 10, 1, 4, 5, 9, and 30. Sir, your being is wrong in the first one. So can we write being cash introducing business? Cash introducing business. So, will stationery be considered as miscellaneous or sundry? No, or stationery is a separate different account. Yes. It is a big expense. Every business has big expense, separated. Stationery separate column, separate account for stationery, separate for telephone, separate for electricity, separate for rent.
these are separate. Repairs. Sir, बोलो. sir, in the fourth one, in narration we can write an account open in Bank of India. Yes. India. Yes. In account open with bank. Check. Any doubt in this? No, sir. All 5 clear? Traditional, modern, all of you check. Cash to capital, okay? Cash bada, capital bada. Purchase to cash, expense bada, asset gata. Purchase expense increase, cash decrease. Cash to sale, cash asset increase, sales income increase. Bank of India लिखो या bank account लिखो, अपना ही bank है. Bank to cash. Bank as an asset increases, cash decreases. Stationery to cash, stationery expense increases, cash decreases. Got it? Yes, sir. All clear, all for the day. We stop at this point. Okay, nothing for written homework. I'll be sending you some extra questions of tables to practice. Okay, but that is for self practice. वो ऑप्शनल है बोलने का मतलब, आप जो क्लास में किया हुआ है वो टेबल पहले गो थ्रू करना, वो रिवाइज करना, उसको चाहिए तो लिख के प्रैक्टिस करना, और एक्स्ट्रा करना है तो आई बी सेंडिंग यू इट इन द ग्रुप. ओके, एंड प्रैक्टिस दोस. एंड उसमें कुछ डाउट्स डिफिकल्टीज रहेगा, लेट मी नो. ओके, अदरवाइज जो 5 टेबल्स हमने किए हैं वो बराबर से करना, उसी में से सब कुछ आएगा. तो गो थ्रू देम प्रॉपर्ली फर्स्ट, ऑल दोस 5 टेबल्स. इज क्लियर? Sir, analysis table. Analysis table. Analysis. Yes, sir. Okay? So the table which you'll send, should we write it in the same class workbook or? नहीं, that is only practice, separate note. That is optional. तो वो आपको ओरली करना है गो थ्रू या लिख के करना है, योर चॉइस. बट क्लास वाले 5 टेबल बराबर से ऊपर. दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. करोगे तो बेटर है, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना बेटर है आपके लिए. एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज इन दैट. स्टॉप फॉर द डे. वी मीट ऑन ट्यूसडे. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thanks. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Sir, हाँ बोलो. for the first one, we can write note being cash introduced as capital. Cash. Yes, okay. Yeah, sir. So you like, I didn't understand what did you mean by, if like our principal told us that I'm from Udyachal. Our principal told us that if someone gets 85 in CET and the person who got 95 in boards, he doesn't give CET, so the first preference will be given to the 85 CET person. And the first round is of CET, like the first round of admission will be of CET preferred children. बराबर है, but CET में परसेंटेज भी होना चाहिए ना. 85 वाले को कैसे है? CET का प्रेफरेंस है वो बराबर है, बट 85 वाला CET या 95 वाला बोर्ड को नहीं मिला तो दैट इज इनजस्टिस टू दैट बोर्ड स्टूडेंट ना. आप एक जगह गवर्नमेंट ने बोला कि CET ऑप्शनल है, बराबर. ऑप्शनल मतलब अभी जिसको 98-97% आ गया वो काय को देगा CET? डजंट मेक सेंस ना गिविंग. बट देन आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि 85 CET वाले को दे रहे हो आप और 97 बोर्ड्स वाले को नहीं दे रहे हो एडमिशन प्रेफरेंस,
तो इट इज एन इनजस्टिस टू द बोर्ड स्टूडेंट ना, देन बोर्ड का कुछ वैल्यू ही नहीं है, फिर तो सब लोग सीईटी देंगे, फिर कंपलसरी करना No, but that is the point, right? Because board they can't come for admissions because they don't know what means they have used. People have got 99 in boards. And 57 people have got 100 on 100. तो 100 भी आता है बोर्ड्स में, 100 भी आया हुआ है. This is not the first time. The number of people who got more than 90 is so like is increased so much कि वो लोग नहीं कर सकते. It's kind of unrealistic. So then they should make CET compulsory. Then why have they made optional? What's in it? Because some parents are not sending because of the COVID situation, not because of the others. That's what your principal said. 85 वाले को दे दे. Yeah, like I literally took this example that if someone gets 95 and the other person gets 85, so she said that she read the GR to us and she said that yes, the first preference is given to this CET thing, as the first round is of CET. So that was like if I got 96 over here, 95, 96. So should I give CET or not? That was the question which I had, because even like if that guy gets and I don't get, so that's quite vague. दे दो CET दे ही दो. Because as far as our knowledge was there ना, it was like this कि preference देंगे but percentage wise जिसका ज्यादा है वो consider. तो board में जिसको कम आया है ना, they might go for CET to improve their scores or something. ऐसा situation. But अभी ऐसा बोला है तो give them, दोनों दो, और क्या, choice ही नहीं. And what were you talking about Gujarati quota thing? Like गुजराती कोटा में ये नहीं रहता है ना preference. कोटा में there is no preference. So the first list is with quota. The CET. हाँ. NM में कैसा, out of 1300 seats, around 670-80 seats are quota on. तो वो पहला 2 सीट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि whether it is CET नॉन CET, वो तो देगा ही नहीं. तो परसेंटेज जो तुम्हारा बोर्ड्स का आया, तुम्हारा गुजराती सर्टिफिकेट, they'll take that. CET का कुछ लेना देना नहीं. Then general category में they will have to give preference to CET. That. So when is it? Around what date? Like after what time does it come? 1 month? What the quota days? list? Not quota list, like the general admission process. देखो पहले कोटा का लिस्ट आता है, सबसे पहला कोटा का एडमिशन. कोटा का होने के बाद 1 week later they announce the first, then the second. So when will quota list come? पहले सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर एडमिशन प्रोसेस चालू होगा ऑनलाइन, उसमें आपको प्रेफरेंस देने का है. तो दैट विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त विल बी फॉर, आपको सब प्रेफरेंस डालना पड़ेगा कॉलेजेस. सीईटी वीटी सब के बाद होगा ना वो भी, like दैट टू आफ्टर सीईटी, दिस टाइम तो आफ्टर सीईटी, नॉट इवन इन that will be in October I guess, because हाँ सितंबर में रिजल्ट आएगा सीईटी का. तो सितंबर एंड अक्टूबर में आपका ये होगा, नॉट इवन अगस्त. लास्ट ईयर इट वाज अगस्त, इस बार तो सीईटी के बाद होगा. तो सितंबर में सीईटी रिजल्ट, सितंबर एंड अक्टूबर में आपको ये देगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. उसमें जनरल कैटेगरी वाले को प्रेफरेंस वाइज कॉलेजेस डालना होता है, टॉप 10 कॉलेज. उसमें आज ही आपका आया जो कॉलेज आता है that the CET will be on 21st August, maybe on 21st August. So maybe 15-16 को वो लोग डेट अनाउंस करने वाले थे, बट दे आर लैगिंग देयर आल्सो. 15-16 को डेट भी अनाउंस नहीं. दे वर सेइंग ना 15 जुलाई तक हम लोग बोल देंगे कि आइदर जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक. ये अगस्त फर्स्ट वीक तो गया साइड, अगस्त मिड, अगस्त एंड कब हो रहा है सीईटी वो भी गारंटी. सीईटी होगा, उसके बाद सीईटी का रिजल्ट, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट, उसके बाद आप लोग सब फाइलिंग करोगे ऑनलाइन, बोलोगे हम लोग को ये कॉलेज प्रेफरेंस डालोगे. उसके बाद कॉलेज का लिस्ट आता. पहले माइनॉरिटी आती, वो माइनॉरिटी का 1-2 हफ्ते बाद जनरल लिस्ट. और जनरल लिस्ट तो हाँ तुम्हारा भी बोला है ऐसा, तो कर ही दो सेफ साइड के लिए. और माइनॉरिटी का 1-2 लिस्ट के बाद जनरल लिस्ट, सोमैया का एनएम का तो 1-2 में खत्म हो जाता है. उधर का 3 से 4 जनरल लिस्ट आता है, सोमैया का 5 जनरल लिस्ट आता है. वो नवंबर तक जाएगा. So what are 5 top colleges according to you? NM
मिठी बाई because उसका semester और finals are connected with. Otherwise NM के बाद it is like HR, then Podar, then मिठी बाई, and then KC. MCC is also very good. MCC and Vazay colleges. MCC comes after Podar actually. Comes in before Podar. Before MCC is like third and then Podar is fourth. But apna crowd doesn't go that. So thoda Maharashtrian crowd is more over. No, like for like more like Gujju crowd if we want Two more. crowds के लिए पहला NM, then HR, then Podar, then मिठी बाई, then KC. And how is Jai Hind? Then Jai Hind after KC Jai Hind. Jai Hind, Hinduja after KC. And so like in one list, like how many students will be selected? Like if for minority also. माइनॉरिटी अभी एनएम का एक ही लिस्ट निकलता है माइनॉरिटी का 650 जन एक ही लिस्ट खत्म 600 and 650 670 स्टूडेंट वन लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी मैक्सिमम 2 मिठी बाई मैक्सिमम 2 लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी क्योंकि क्या होता है पीपल अप्लाई इन बोथ एनएम एंड मिठी बाई दोनों में अप्लाई कर डालते देयर आर वेरी कॉमन नेम्स इन एनएम एंड मिठी बाई तो पहला एनएम में लग गया तो एनएम में भाग जाएगा मिठी बाई वाला उतना स्लॉट्स खाली हो जाए मिठी बाई comes up with another list there are two minority किसका पहला आएगा लिस्ट एनएम की मिठी बाई साथ में ही आता है दोनों एनएम मिठी बाई put their first minority list together admission also process starts together उसमें जो हो गया फिर within a week भी नहीं 3-4 days एनएम तो क्योंकि ऑब्वियसली एनएम है सबका फर्स्ट प्रेफरेंस तो वो तो सब सिक्योर कर ही लेता है तो एनएम का दूसरा लिस्ट नहीं निकलता मिठी बाई का सेकंड माइनॉरिटी वो भी 100-200 जन जो ऊपर का स्लॉट खाली ना 100-200 जन के लिए 150 दैट सेकंड लिस्ट will have What about NMHR challenge? अरे comparison. NM anytime NM is HR में पब्लिक क्या जाता है HR is lenient with attendance curriculum is simple papers are simple one of the easiest papers are in HR जो आपका आंसर क्वेश्चन पेपर होता है if someone wants to do CA so then तो HR is a better choice right हाँ because attendance issues नहीं है but that you can take a shift in 12th में you can shift isn't don't foundation classes start from 12 नहीं after 12 there are chances के 12th के साथ भी है but we won't be taking we are advising to go for after 12th in November 12th के साथ है ना बहुत messed up बहुत स्टूडेंट्स लोग का सैंडविच हो जाता है नवंबर दिसंबर बिकॉज तभी ऑनलाइन था अभी ऑफलाइन होने वाला है तो यू हैव टू अटेंड कॉलेज यू हैव टू अटेंड सीए क्लास यू हैव टू अटेंड अपना रिवीजन लेक्चर्स टेस्ट देने का सब इज ऑल अ मेस so how many people are there in the minority list in HR also 50% so you get around 500-600 students okay sir thank you what do you get HR का माइनॉरिटी बहुत कितना मतलब 75% 78% स्टूडेंट्स they get in HR. I had a doubt regarding this. You are Sindhi, na? Depreciation is a non-cash expense. Yes, absolutely right. आएगा आगे depreciation. Depreciation is an expense बड़ा asset come. Yes, thank you. Sir, I had a doubt in the previous one. She brought goods as her capital in the beginning. So उधर purchase का क्यों मतलब reason क्या था? Purchase reason ये था क्योंकि ये purchase में कौन सा expense होता है जो आप sell करने वाले हो goods. Owner जो goods लेके आया business वो ultimately वो sell ही करेगा ना आगे market में profit का. तो खाली फर्क क्या हुआ कि owner समझो cash लाता तो cash to capital और वो cash से आप goods खरीद परचेज टू कैश समझो ओनर कैश लाता भी तो कैश आता कैपिटल बढ़ता और वो कैश से आप गुड्स खरीदते तो क्या होता है कैश जाता और परचेज डेबिट होता ना यहाँ पे कैश आया भी नहीं गया भी नहीं डायरेक्टली ओनर गुड्स लेके आया बात तो वही हुई But why is the purchase expense increasing? तुमको बोल रहा हूँ ये परचेज एक्सपेंस बढ़ने का मतलब क्या है गुड्स आया है वो तुम बेचने वाले हो ना इट इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस खर्चा हो गया ना बढ़ गया और किधर डालोगे गुड्स एसेट में डालोगे विल यू कीप दैट गुड फॉर 2 more years 3 more years your business as it is no they are going to sell it right
खाली only difference is you are not paying cash for that. तो तुम इमेजिन करो ओनर 1 लाख रुपया बिजनेस में कैश लाया. इमेजिन ओनर गुड्स लाया ही नहीं, ओनर बिजनेस में कैश लाया और ताबड़तोड़ वो कैश देके तुमने गुड्स खरीद लिया, तो क्या होगा? पहला कैश और कैपिटल, कैश बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा, फिर कैश घटेगा और परचेज बढ़ेगा, वो परचेज ही होगा ना तुम्हारा एक्सपेंस. तो कैश को हटा दो इक्वेशन में से, तो क्या बचा? परचेज एंड कैपिटल. वो वही है, खाली कैश आया और गया नहीं. ताबड़ जो बचा हुआ है ना अनसोल्ड स्टॉक, उसके लिए हम गुड्स अकाउंट यूज करते हैं, जो पड़ा हुआ है ईयर एंड. बाकी जो भी गुड्स आपका बिजनेस में आया है, बाया फ्रॉम ओनर, वेदर फ्रॉम ओनर, और इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम थर्ड पार्टी, so you'll be using purchase account. Those are sold. जो गुड्स सेल नहीं हुआ है उसको आप परचेज में से कम करते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड्स, लॉस बाय थेफ्ट, सैलरी, वो सब परचेज में से कम, वो सब परचेज, बाकी सब परचेज. Okay, sir. Thank you, sir. So, Yeah. sir, I had a doubt regarding the college thing. Cool. So, Karthik, what is the like quota of Podar? Podar has a 50% quota of ST, SC, OBC and sports. मतलब सबका अलग अलग है, कुछ 10, 12, 10, 12, 10, 12. So, what is ST, SC, OBC? Scheduled tribe, scheduled caste, okay. backward caste, other backward caste. और तुम्हारा ये है स्पोर्ट्स कोटा है 3%, 5% स्पोर्ट्स कोटा. मैनेजमेंट कोटा है, मैनेजमेंट मतलब पैसा खिलाए, पैसा खाता है. 1% you 1% is like 1 lakh 2 lakh. तो 90 का तुम्हारा 89 है तो 2 लाख, 87 है तो 5 लाख, 85 में चाहिए तो 8 लाख 10 लाख. बहुत पैसा है, बट पैसा वैसा देके जाने का is waste. Doesn't make sense spending so much in 11th. Karthik, how much you got percentage? So I didn't get. I am in ICS. ICS. Yeah. You are in some quota. कोई आता है तुम्हारा कैटेगरी में? I don't think so. Sports. Sports, like I am, but I don't think. State level player. No, not state level. Yes, district. और बोलो. Ansika, you're Sindhi, right? HR you want? Yeah, I'm deciding between HR and Jahan, but probably HR. HR, Jain में go for it. Yeah. HR or KC you can decide. Even Jahan has 80% or 75% attendance, so I don't want that. Go for it. HR is. और बोलो. That's it. मिलते हैं हम लोग Tuesday दिन. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.